नमस्कार। आज हम सभी यहाँ स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम अभियान के तहत सभी स्वास्थ्य आरोग्य दूत के प्रशिक्षण से संबंधित इस वीसी के आयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे बीच झारखंड में उपस्थित हमारी डॉक्टर जोया अली रिजवी, डिप्टी कमिश्नर एडोलेसेंट हेल्थ, भारत सरकार का स्वागत करती हूँ, जो आज हमारे साथ हैं और हमारे साथ रूबरू होंगी और सभी शिक्षकों को अपना मार्गदर्शन भी देंगी। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे बीच झारखंड राज्य के SNO RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉक्टर अनिल कुमार सर का, जो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं और स्टेट लेवल पे RKS के कार्यक्रम की बागडोर संभाले हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ मिस्टर बाकी बिहारी सर का, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं JCERT में और जो हमारे इस अभियान के एक अभिन्न अंग है, जिनका सहयोग के बिना इस अभियान की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं JCERT के सभी प्रतिनिधि, सभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। और इस अभियान को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे स्वास्थ्य आरोग्य दूत और शिक्षक गण का होना है, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ आज के इस वीसी में। इस अभियान को संचालित करने के लिए झारखंड राज्य में हमारे बीच डेवलपमेंट पार्टनर्स और NGO, सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज, जपाइगो, सिने, क्वेस्ट अलायंस, संपूर्णा, ये सभी भी उपस्थित है, जिनके तकनीकी सहयोग से हम इस अभियान को सफल बनाएंगे। मैं उनका भी आज स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे ये वीसी के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या किया जाना है, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं सीधा हमारे राज्य नोडल पदाधिकारी RKS के डॉक्टर अनिल कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ, जो आप लोगों को इस कार्यक्रम का उद्देश्य और इस कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। सर। प्यारे व्यूअर्स, respected all viewers, myself Dr. Anil Kumar, Deputy Director Health Services cum State Nodal Officer RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक AFHC युवा मैत्री केंद्र clinic to provide the counseling on 6 components, strategic components, namely nutrition, non-communicable diseases, substance misuse, injury and violence, including gender-based violence, and mental health, and sexual and reproductive health. Next component is our peer educator. The adolescent in the community will be covered through the peer education PE programs. The selected peer educator called Sathiya will ensure that the adolescent benefit from the regular and substantive peer education covering all those 6 components of the RKS scheme. Weekly iron and folic acid supplement program to reduce the prevalence and the severity of the nutritional anemia in the adolescent population 10 to 19 years of age. The prevailing anemia situation among the adolescent girls and boys through the supervised weekly ingestion of the IFA supplement and biannually deworming. Under the deworming, we are using albendazole 400 milligrams. Menstrual hygiene scheme is the next component to increase the awareness among the adolescent girls and
menstrual hygiene, and empowering the girl for the greater socialization. Free distribution of the sanitary napkin under the menstrual hygiene programs was started on the 6th June 2016. 6th June 2016. The 24 districts of Jharkhand, this program has run by the health department with the support of the education department. Sanitary napkin is given free of cost to the adolescent girls from the class 6 to 12 by the government and government added the school by the government of Jharkhand free of cost. School-based approach, school health and wellness program, SHWP, as large number of adolescents are in the school under the Ayushman Bharat, intensified the activities for the school-based health promotion, health program, prevention will be carried out in the collaterally by the Department of School Health and Education. झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सामंजस्य से राज्य के सभी 24 जिले में चलाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में सभी कक्षा 6 से 12 तक विद्यालय में 2 स्वास्थ्य आरोग्य दूत हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर का चयन उपरांत प्रशिक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा विद्यालय में साप्ताहिक स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाना है। यह कार्यक्रम झारखंड राज्य के सभी स्कूल के किशोर एवं किशोरियों के संपूर्ण विकास विशेषकर स्वास्थ्य को बेहतर करने की एक सार्थक पहल है, जिसमें झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का सहयोग प्राप्त है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोर एवं किशोरियों में प्रारंभिक बीमारियों का पता लगाना और उनका समुचित इलाज करना है, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल में उपयुक्त रेफरल के साथ साथ कुपोषण एवं एनीमिया की पहचान सम्मिलित है। किशोर एवं किशोरियों के बीच योग और चिंतन का बढ़ावा देकर मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है। इसी कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से 14 नवंबर 2022 से राज्य के कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान चलाया जाना है, जिसमें स्वास्थ्य आरोग्य दूत हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर अन्य शिक्षक द्वारा किशोर एवं किशोरियों का प्राथमिक स्वास्थ्य जांच किया जाना है। उक्त हेतु एक स्वास्थ्य जांच पुस्तिका तैयार की गई है एवं आज YouTube लाइव के माध्यम से आपको प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच एवं लक्षण चिन्हों के आधार पर बीमारी का पहचान करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। यह झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि स्कूल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर जोया अली रिजवी, डिप्टी कमिश्नर एडोलेसेंट हेल्थ
भारत सरकार हमारे बीच है एवं झारखंड में की धरती पर देवघर से आप सभी को संवाद करेंगी। अंत में शिक्षा विभाग JCERT के सहायक निदेशक एवं नोडल पदाधिकारी स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं विशेषकर सभी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर से आशा करता हूं कि उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु सभी किशोर एवं किशोरियों का स्वास्थ्य जांच संपन्न कराएंगे ताकि ससमय उनका उपचार और समुचित रेफरल हो सके। झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान एवं को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं डेवलपमेंट पार्टनर सेंटर ऑफ कैटलाइजिंग चेंजेस C3 जपाइगो, सिडनी एवं पिरामिल द्वारा तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। अंत में सभी को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु देता हूं। थैंक यू ईच एंड एवरी पर्सन। धन्यवाद सर आपके इन महत्वपूर्ण शब्दों के लिए जो सीधा सभी शिक्षकों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहायक निदेशक श्री बाकी बिहारी सर से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे शिक्षकों और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो बिल्कुल बैकबोन है हमारे स्वास्थ्य आरोग्य दूत को संबोधित करें, कार्यक्रम के विषय में बताएं सर। धन्यवाद मैडम। आज इस कार्यक्रम के तहत जितने भी स्टेक होल्डर इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं या जो हमारे पदाधिकारी गण जो भारत सरकार से आए हैं, मैं मेरे तरफ से सभी को नमस्कार। खासकर हम अपने विद्यालय प्रधान या फिर हर विद्यालय से जो आरोग्य दूत हैं या हर क्लास से दो दो जो मैसेंजर हैं तथा उनको मॉनिटरिंग करने के लिए जिला स्तर पर जो हायरार्की है, DO है, DSC है, BO हैं या DC की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, सभी को नमस्कार। आप सभी अवगत हैं कि आयुष्मान भारत पहल के तहत विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम में JCERT एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से विद्यालय जाने वाले सभी किशोर किशोरियों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधित मूलभूत जानकारी, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक सहायता देने का कार्य राज्य के सभी 19 आकांक्षी जिलों के वर्ग 6 या से ऊपर पढ़ने वाले बच्चों में तकनीकी सहयोगी संस्था सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज C3 एवं संपूर्णा के साथ मिलकर कर रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु चिन्हित हितधारकों यथा शिक्षकों को SRG के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। हर एक विद्यालय से प्रधानाध्यापक दो शिक्षकों को विद्यालय स्वास्थ्य आरोग्य दूत के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है और साप्ताहिक घंटे के आधार पर निहित विषयों पर बच्चों के बीच सत्र का आयोजन जारी है। हर स्कूल से वर्गवार 2 बच्चों का चयन विद्यालय स्वास्थ्य आरोग्य संदेश वाहक के रूप में किया गया है। विभाग के द्वारा विद्यालय स्वास्थ्य आरोग्य संदेश वाहक एवं विद्यालय स्वास्थ्य आरोग्य दूतों को टी-शर्ट, कैप, बैज भी दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से किशोर किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण, सहपाठियों से सकारात्मक संबंध, तार्किक एवं विश्लेषण कौशल की दक्षता, निर्णय लेने, समस्या के समाधान, सकारात्मक विवाद कौशल विकास करने के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित संसाधनों के बारे में जागरूकता एवं उन तक पहुंच को बढ़ाया जा सकेगा।
उपरोक्त सभी कारक किसी न किसी रूप में विद्यालय प्रत्याग की घटनाओं में कमी, सीखने का असर, विद्यालयों में छात्रों के ठहराव के अनुपात में वृद्धि, छात्रों में सहिष्णुता एवं उनके मानसिक स्वास्थ्य के बेहतर बनाने में मददगार सिद्ध हो सकता है। तो मेरा आग्रह है कि इतने महत्वपूर्ण कार्य जो कि नॉट ओनली शिक्षा से बल्कि इसमें स्वयं भी आपके अपने शिक्षा में सुधार करने में बहुत ये कार्यक्रम सहायता प्रदान करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितना अच्छे तरीके से स्वास्थ्य विभाग या अन्य लोगों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन विद्यालय में सही तरीके से करें ताकि जो झारखंड का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके ये जो कार्यक्रम में आपका जो योगदान है सर और जितनी सहभागिता हम लोगों को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आपका मिल रहा है वो आगे भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है और निश्चित रूप से हम लोग आपकी सहायता हमेशा लेते रहेंगे और मिलकर अपने झारखंड के किशोर किशोरियों के लिए एक बेहतर और जो सार्थक पहल हमने किया है इसको एक अच्छे मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे। अब हमारे बीच डॉक्टर जोया अली रिजवी मैम हैं जो आज सभी हमारे शिक्षकगण, हमारे स्वास्थ्य आरोग्य दूत सभी से डायरेक्ट संवाद करेंगी। तो मैं सीधा मैम से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे शिक्षकों को आशीर्वचन दे, गाइडेंस दे और इसके बारे में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में बोले। तो मैम प्लीज। धन्यवाद रफत। मैं अपना तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि झारखंड स्टेट ने इतना बड़ा मौका दिया है मुझे बोलने का। अपने जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो बच्चे इसको सुन रहे हैं, उसका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बस केंद्र सरकार से यहाँ झारखंड में इनफैक्ट सीआरएम में आई हुई थी, बट इतना अहम ये कार्यक्रम है कि सब कुछ छोड़ के मैंने सोचा कि आप लोग सबसे बात में थोड़ा रूबरू हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे शिक्षा विभाग के लोग जुड़े हुए हैं और पूरी इंटरेस्ट से, पूरे पैशन से साथ लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जो स्कूल जाने वाले हमारे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारे शिक्षकों को ही आसानी होगी। और अगर हम लोग शिक्षकों को सही तरह हम लोग ट्रेनिंग दे पाएंगे तो शिक्षक जो है इतना अच्छा सपोर्ट देंगे हमारे बच्चों को, ताकि हर एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो अपने शिक्षक से अपनी प्रॉब्लम साझा कर पाएगा, अपना सपोर्ट ले पाएगा। और आगे चल के यही बच्चे जो हैं अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो आगे अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ताकि झारखंड जो कई स्वास्थ्य के इश्यूज में कई बार थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो अगर हमारे बच्चे जो हैं जो स्कूल में स्वस्थ होंगे तो आगे चल के स्वस्थ अडल्ट होंगे, और अगर चाहे माँ बाप बनना तो उनके बच्चे भी स्वस्थ होंगे। तो ये जो हम निवेश इस उम्र में कर रहे हैं, इस स्कूल जाने वाले बच्चों में जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसका लंबा असर पड़ेगा। तो धीरे धीरे साथ साथ चलना है, अपने शिक्षकों को साथ लेना है, अपने मेडिकल ऑफिसर को साथ लेना है, अपनी सहिया को साथ लेना है, अपनी सहायिका को साथ लेना है, सबको साथ लेना है। क्योंकि जो भी बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन दे पाए, जो हम गाइडेंस दे पाए और इनके थ्रू हमारे बच्चों तक पहुंच जाए, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। और हमारे शिक्षक जो साथ जुड़े हैं उनका तो बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि वो बच्चों के साथ 6 से 8 घंटा स्कूल रहते हैं, बच्चों उनकी बिल्कुल पूजा करते हैं हमारे टीचर्स की। अगर टीचर उनको सही गाइडेंस दे पाए, स्वास्थ्य के बारे में बता पाए, कैसे हेल्दी रहना है, क्या चीज खानी है, कैसे अपने को सेफ रखना है, कैसे इंटरनेट यूज करना है ताकि कोई नुकसान ना हो, कैसे खान पान करना है, कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य की सेवा करनी है, अगर कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर से तुरंत साझा करें। तो ये एक अगर ये सिस्टम हमारा जगह में लग जाएगा, हमारे टीचर अगर ये समझेंगे, और इसके अलावा हम लोग जो अपने शिक्षकों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
बेसिक हेल्थ की, जो मान लीजिए बच्चे को अनीमिया है, कोई देखने में कमजोरी है, जैसे हम लोग को तो चश्मे लग गए भाई, लेकिन बच्चों को अगर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है तो टीचर गाइड कर सके कि भाई तुमको नहीं दिख रहा है तो तुमको यहाँ टेस्टिंग करानी चाहिए। अगर बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा तो हमारे शिक्षक ही बता सकते हैं कि भाई इसको प्रॉब्लम है। अगर बच्चा एकदम से पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है या कोई परेशान दिख रहा है या एकदम से पढ़ते पढ़ते छोड़ सकता है, स्कूल छोड़ दे, तो ये गाइडेंस जो हमारे शिक्षक दे पाएंगे उससे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, ताकि हमारी जो आगे चल के हमारे जो आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो टीम आएगी स्कूल में, तो हमारे शिक्षक बहुत टारगेटली बता सकेंगे कि भाई ये बच्चे हैं जिनको स्वास्थ्य का सही गाइडेंस चाहिए, सही चेकअप चाहिए, ताकि बच्चे फिर से स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ बच्चे वापस जब स्कूल आएंगे तो और अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो ये एक पूरा सिस्टम हम लोग को लाना है। आप लोग को बहुत मेहनत करनी है। मैं जानती हूँ कि टीचर लोग, हमारे शिक्षक लोग ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको आप मिड डे मील भी दे रहे हैं, उसकी बता रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, स्कूल में जो भी आप लोग दे पाते हैं शिक्षा विभाग से उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, आईएफए टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आगे चल के मान लीजिए अगर सैनिटरी पैड भी हो तो उसमें भी आपकी हम लोग को सहायता चाहिए होगी। तो आपके कंधों पे बहुत भार है, बट हम लोग को अपने शिक्षकों से बहुत उम्मीद होती है। हम लोग अपने शिक्षकों को आई थिंक जिंदगी भर याद भी करते हैं। तो आप लोग ऐसा काम करें ताकि सब बच्चे आपको याद करें, आपकी सहायता लें, और आप इन बच्चों के भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपना जो रोल निभाएंगे वो आई थिंक आजीवन आपका प्रदेश कभी भूल नहीं पाएगा। तो इसके साथ ही मैं आई थिंक विराम दूंगी अपनी बात को। एंड बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने का, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा काम करिए, करते रहिए, और कुछ भी अगर हम लोग से हो पाए कोई सहायता तो बेझिझक हमसे संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपके इन शब्दों के लिए। और शिक्षकगण का महत्व हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर से इसको पुनः स्मारित करते हुए आप सबों के बीच रखने हुए, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को हम सभी मिलकर स्वास्थ्य शिक्षा विभाग एक होकर हम अपने बच्चों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए करेंगे और इसे निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। बच्चों को एक बेहतर स्वास्थ्य की जो परिकल्पना की गई है उसको हम सार्थक करके दिखाएंगे। तो मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अभी आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, जो आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे शिक्षकगण और स्वास्थ्य आरोग्य दूत जो बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की जो बीमारियों की पहचान कैसे होगी, क्या उसमें करना है, इसके लिए हमारे साथ हमारे दो प्रशिक्षक हैं, जो कि आरकेएस के कोषांग से मिस्टर संजय कुमार हैं और आरबीएस के कोषांग एनएचएम से मिस्टर मुकेश कुमार है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आगे का प्रशिक्षण कार्यक्रम वो लोग अब शुरू करें। धन्यवाद। स्कूल में हमारे स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत अभी कार्यक्रम चल ही रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को इसमें जोड़ा जा रहा है। इसके अंतर्गत जो हमारे कक्षा 6 से 12 के बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके बीच जो है हमारे टीचर रहते हैं और वो हमारे बच्चों को प्रतिदिन देखते हैं। उनको बच्चे की गतिविधि, उनकी एक्टिविटीज, खेल कूद, किसी चीज में भाग लेना, सहभागिता के आधार पे वो पहचान सकते हैं कि हमारे बच्चे किसी बीमारी से ग्रसित है या नहीं। इसीलिए जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर रोगों की पहचान करने के लिए हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, क्या लक्षण देख सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है कि इसमें जो स्वास्थ्य की टीम स्कूल में जाती है और वो बच्चे की स्वास्थ्य जांच करती है। स्वास्थ्य जांच करने के बाद जो उनका काम होता है कि स्वास्थ्य जांच करके बच्चे को उनके लक्षण के आधार पर, उनकी बीमारी के आधार पर उनको संबंधित संस्थान में भेजा जाता है और उनका इलाज कराया जाता है। मतलब कि समय से समय रहती है उनकी जांच करना और उसके अंदर ही उनका इलाज कराना, ताकि बच्चे किसी बीमारी से अगर ग्रसित है तो वो बीमारी आगे चलकर उनके अंदर किसी प्रकार की विकलांगता का रूप ना ले ले। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड में 2013 में हुई थी और तब से ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये कार्यक्रम जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्कूल में हमारे स्कूल टीचर से संपर्क करके जाके वहां पे बच्चों की स्वास्थ्य जांच करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसा कि मैं अभी आपसे जानकारी साझा कर ही रहा था कि जो मेन उद्देश्य हमारा होता है
कि जो बच्चे हमारे स्कूल में जा रहे हैं उन्हें समय रहते उनके अंदर जो लक्षण दिख रहे हैं, जो बीमारियां दिख रही हैं, उनकी पहचान करके उनका इलाज करवाना, ताकि किसी भी बीमारी के शुरुआती दौर में ही हम उसको पकड़ के उसका इलाज करवाएं तो हमारे बच्चे का भविष्य जो है वो आगे उज्जवल हो सकता है। आगे सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें जो है पोषण संबंधी बीमारियां होती है, जिसकी वजह से वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। और पोषण संबंधी बीमारी अगर समय रहते पहचान कर उनकी इलाज हम नहीं करवाते तो बच्चे में ये जो है एक अस्थायी विकलांगता का रूप ले लेती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें समय रहते बच्चों की स्वास्थ्य जांच करके उनके अंदर जो रोग दिख रहे हैं उसका इलाज करा के उनको एक उज्जवल भविष्य दे सके। सर आगे सर। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में जो है मुख्यतः जो बीमारियां हमें दिखती हैं वो कान से हो सकती है, कान रोग या दांत से संबंधित होता है, नेत्र रोग हो सकते हैं, विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, टीबी रोग हो सकते हैं, फ्लोरोसिस होगा जिसमें बच्चों के दांत खुद ब खुद टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, कुष्ठ रोग हो सकते हैं। बच्चों में अगर समय पे पहचान इलाज नहीं हो पाई और पोषक तत्व कमी हो तो मानसिक रोग की समस्या उनमें आती है, घेंघा रोग हो सकता है। और हम बच्चे जो है किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो इस तरह के बच्चे बीमार हमें स्कूल में मिल जाते हैं। आगे सर, नेक्स्ट सर। उसके साथ साथ ही किशोरावस्था में जो सामान्य बीमारियां हमारे बच्चों में दिखती है वो मादक पदार्थों का सेवन उनके द्वारा अगर किया जा रहा है, किसी प्रकार के एक दूसरे बच्चों को देखकर, अपने सहपाठी को देखकर किसी प्रकार का तनाव महसूस कर रहे हैं, उनके जो मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें कोई देरी आ रही है, उन्हें किसी प्रकार का पेट दर्द या पेशाब में जलन हो रहा है, तो ये सब बीमारियों की पहचान करके हमें उनका इलाज कराना है। नेक्स्ट सर। अभी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम जो है, जो हमारे बच्चों की स्वास्थ्य जांच करती है, दो स्तर पे करती है, एक आंगनबाड़ी में करती है और एक स्कूल में करती है। तो स्कूल में मुख्यतः जो भी जाते हैं वो उनके पास एक माइक्रो प्लान होता है, माइक्रो प्लान के हिसाब से वो उस किसी भी स्कूल के लिए एक दिन निर्धारित करते हैं और वहां जाकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच करते हैं। स्वास्थ्य जांच करने के बाद उनमें अगर कोई बच्चे किसी रोग से ग्रसित मिलते हैं तो उन्हें जो है हमारे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पे भेजा जाता है। उनका इलाज अगर उस स्वास्थ्य केंद्र पे अगर संभव हो पाता है तो वहां कराया जाता है, नहीं तो फिर हम जिला अस्पताल भेजते हैं। जिला अस्पताल में भी अगर वो इलाज नहीं संभव है तो किसी भी विशेषज्ञ अस्पताल में भेजकर उनका इलाज कराया जाता है। नेक्स्ट सर। इस कार्यक्रम में अभी तक का जो हमारा कार्य योजना था, जो बहुत सारे काम हम लोगों ने कर लिया। एक तो जो हमारे स्टेट रिसोर्स ग्रुप है और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप, उनका प्रशिक्षण हो गया है। आज आप लोग हमारे शिक्षकगण और हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स लोग का जो है इसके थ्रू प्रशिक्षण किया जा रहा है यूट्यूब लाइव से। उसके बाद जो है ये काम जो है स्वास्थ्य जांच की काम जो है हमें स्वास्थ्य विभाग की टीम और शिक्षा विभाग की टीम के साथ समन्वय के साथ करना है। पहले जब आपके द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाएगी बच्चों के लक्षण के आधार पे, और उसमें ऑनलाइन एक ऐप के थ्रू आपको रिपोर्ट करना है। वो जब रिपोर्ट आप उसमें अपलोड करेंगे उसके बिहाफ में, उसके अनुसार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है संबंधित क्षेत्र या संबंधित स्कूल के लिए वो माइक्रो प्लान का निर्माण करेंगे। और उसके बाद जो है आपके स्कूल में जाकर बच्चों की स्वास्थ्य, जिसने बच्चों का आपने चयन किया है कि माप किया है कि हाँ बच्चे बीमार हैं, उनकी स्वास्थ्य जांच करेंगे। सर आगे सर, नेक्स्ट। हेल्थ एंड एम्बेसडर द्वारा अभी जो कार्य स्कूल में किए जा रहे हैं उसमें हम बच्चों को कृमि की दवाई और आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट या सैनिटरी पैड का वितरण किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएंगी वो बच्चों को उनके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के बारे में सलाह भी दे सकते हैं, सलाह देंगे। और हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर द्वारा बच्चों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। मेन जो उद्देश्य है इसका, जो हमें आउटकम मिलेगा वो यही होगा कि समय रहते हम बच्चों में होने वाले रोगों की पहचान कर पाएंगे और बच्चों को किसी होने वाली बीमारी के प्रति जागरूकता, उनका इलाज और उनकी पहुंच से जो भी हमारे बच्चे स्वास्थ्य में सुधार हो सकती है तो उनके भविष्य में भी सुधार हो सकती है। सर आगे सर, चलिए शुरू करें।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसा मुकेश ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और एक है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो हमारा लक्षित ग्रुप है जिसपे हम लोग काम करते हैं, तो 0 से 18 साल की उम्र के बच्चों को हम लोग आरबीएस के कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। जैसे 0 से 6 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग आंगनवाड़ी सेंटर पे की जाती है, और 6 से 18 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग स्कूल के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम लोग 10 से 19 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ, किशोर किशोरियों के साथ काम करते हैं। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। अब यस, तो इसमें जैसे आप लोग ने, जैसे पहले आप लोग को बताया गया, इसमें हम लोग मेनली 4 Ds पे काम करते हैं। 4 Ds क्या है, थोड़ा इसके विषय में भी आप लोग की जानकारी होनी चाहिए कि जो भी बच्चे हैं उनको 4 तरह से 4 Ds में उसको डाला गया। जो भी बीमारियां हैं उसको 4 Ds में मतलब कैटेगराइज किया गया है, बोला जा सकता है। तो पहला जो डी है वो है डेवलपमेंटल डिले। जो भी बच्चे जन्म के साथ, जिनका मतलब जन्म में, जिनका जन्म मतलब उनके विकास में जो माइलस्टोन डेवलपमेंट जिसमें बोला जा सकता है हम, कि उनके डेवलपमेंट में जो कमियां रह जाती हैं, जो समय के अनुसार, जैसे एक उम्र के साथ उनमें जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट होती है तो उसको हम लोग डेवलपमेंटल डिलेज बोलते हैं। सेकेंड डीज जो है हमारा डिफेक्ट एट बर्थ, जिसमें हमारा जो बच्चे हैं बचपन से ही उनमें किसी ना किसी तरह का कोई डिफेक्ट पाया जाता है। उन डिफेक्ट का अगर सही समय पे हम लोग इलाज कराया जाए तो उस पर हम लोग उन बच्चों को हेल्थ में सुधार हम लोग कर सकते हैं। तो उनके तीसरा हमारा है डिजीज। जो भी बीमारियां बच्चों को बचपन से ही, जो बीमारियां कुछ बच्चों को हो जाती है, उन बच्चों को हम लोग स्क्रीनिंग के माध्यम से, तीसरा डिजीज हो गया जिसके माध्यम से हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। और लास्ट है हमारा डेफिशिएंसी। 4 Ds में चौथा हमारा डेफिशिएंसी है। बच्चों में जो कमियां पाई जाती हैं, कुछ हमारे मिनरल्स के या विटामिन की जो कमियां पाई जाती हैं, उन कमियों को भी हमें समय पे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि उनका इलाज किया जा सके। तो ये 4 Ds में ये चारों सभी बीमारियों को कैटेगराइज किया गया है। उसी कुछ बीमारियों को हम लोग अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रथम चरण में जो हमारा पहले जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जैसे मुकेश ने बताया कि ये कार्यक्रम 2 फरवरी 2013 से हमारे राज्य में चल रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत आरबीएस के डॉक्टर प्रत्येक स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर जाते हैं, बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, और स्क्रीनिंग के पश्चात उनको जो भी डिफेक्ट पाया जाता है या डिजीज पाया जाता है या डेफिशिएंसी कोई होता है या डेवलपमेंटल डिजीज होता है तो उनको रेफर किया जाता है हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज है वहां पे। अभी आप हम जो टीचर्स अभी हैं, जिससे हम लोग क्या उम्मीद रखते हैं, इसके विषय में आप लोग को जानना चाहिए कि आपके जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को आप लोगों को देख करके उसमें जो भी लक्षण पाए जाते हैं उन लक्षणों को आपको देखिए और उनको आप अपने नजदीकी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे या फिर हमारे जो आरबीएस के डॉक्टर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं ताकि बच्चों को समय पे उसका ट्रीटमेंट मिल सके। तो हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ बीमारी जो है अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से। तो जो पहला हमारा बीमारी है खून की कमी, जिसमें एनीमिया जिसको बोला जाता है, बहुत कॉमन वर्ड है, हमको लगता है आप लोग सारे लोग सुने भी होंगे। और इसमें जो भी हम लोग इस प्रशिक्षण के दौरान आप लोग को बता रहे हैं ये बहुत कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है। इवन देखिए हमारे अपने बच्चे जो घर पे होते हैं उन बच्चों को भी हम देखते हैं कि हाँ इस तरह के कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। पहले आप लोग आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, वो आपका काम था सिर्फ पढ़ाना। पढ़ाने के बाद उस पर हम लोग कोई भी फोकस बच्चे के बीमारी पे हम लोग बात नहीं करते थे। लेकिन अब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ गई है यहाँ पे। उनको अपने बच्चों की तरह अपने स्कूल के बच्चों के साथ भी ट्रीट करना है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी आपको जज करना है और उस पर आपको उनको बताना है। थोड़ा सा बैक स्लाइड प्लीज। यस, तो आप देख रहे हैं एनीमिया के जो लक्षण है इसमें आपको लक्षण साफ साफ दिखा गया है। जो भी हम लोग यहाँ पे आज प्रशिक्षण के दौरान आप लोग को बताया जा रहा है इसकी एक बुकलेट भी बनाया जा रहा है हमारे राज्य स्तर पर, बहुत जल्द आप लोग को उपलब्ध भी कराई जाएगी ताकि आप लोग को स्क्रीनिंग में बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। तो पहला हमारा जो देख रहे हैं एनीमिया के जो लक्षण है, त्वचा में हथेली में पीलापन पड़ना, ये बहुत कॉमन है, आप लोग सारे लोग जानते हैं, आप लोग देखते भी हैं कि हथेली हमारे लाल रंग का होना चाहिए। उसमें अगर लालीपन में थोड़ा सा भी कमी आ रहा है तो उसमें एनीमिया की समस्या हो सकती है। दूसरा आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से साफ साफ दिखाया गया है कि आंख की लालिमा कम हो जाती है।
तो उससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों को कि वहां पे उनको एनीमिया से कोई समस्या है। बच्चे यहाँ पे आके आपको बोल सकते हैं कि हाँ हमें चक्कर हमेशा आता रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थकान होती है, सुस्ती होती है, उदासी होती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, सिर में दर्द होता है, भूख कम लगता है। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या अगर बच्चे आप लोग को बताते हैं तो वो एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। तो इसको इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इस एनीमिया की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए आयरन के जो स्रोत हैं यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है कि आप बच्चों को एनीमिया से बचाव के लिए क्या क्या दिया जा सकता है। इसमें बहुत है, लेकिन हमको लगता है हमारे गांव स्तर पे इतने फ्रूट्स अब पॉसिबल नहीं है इनको बच्चों को दे पाना। तो जो भी लोकल लेवल पे जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी हरी साग सब्जी हमारे गांव में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको हम लोग सेवन के लिए उनको बताया जा सकता है, क्योंकि सभी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए लोकल अवेलेबल फूड पे हमें बहुत ज्यादा फोकस्ड होना, उनको बताना होगा कि आप इस तरह का खान पान आप लोग खाइए, जो आपके घर में हरी साग सब्जियां हैं उनका सेवन कीजिए, ताकि आयरन उनको प्रॉपर मिल सके उनके शरीर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुपोषण, सही पोषक तत्व नहीं मिल पाने की वजह से बच्चों में जो सामान्य वृद्धि होनी चाहिए, उनके जो मानसिक ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। तो कुपोषण जो है हमारे झारखंड में से बहुत सारे बहुल क्षेत्र हैं जहाँ पे सही खान पान नहीं है या न्यूट्रिशनल फूड नहीं है, पहुंच से बाहर है, वहाँ के बच्चे अधिकतर कुपोषित दिख जाते हैं। तो इनकी पहचान करने का कुछ जो है यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, जिसे हम पहचान सकते हैं। बच्चों का वजन उम्र के हिसाब से कम है, बच्चों का जो हाइट है, लंबाई है या ऊंचाई, वो उनके उम्र के हिसाब से कम है, उनका शरीर बहुत दुबला है, पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, उनके पैरों को छूने से, दबाने से उनमें एक गड्ढा दिखता है, इसका मतलब पैरों में सूजन है। उनको किसी प्रकार की घाव अगर हो रही है तो घाव छूट नहीं रहा है, लगातार घाव बना हुआ ही है। बच्चे में जो है मानसिक विकृति हो सकती है, और बच्चे को हमेशा दस्त या पेट खराब हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए जो हमें जानकारी होनी चाहिए हमारे पास, उसी तरह से है कि जो हमारे क्षेत्र में मौसमी फल मिलते हैं या दाल मिल रहे हैं, वो सारे खाने हमको खाने से जो कुपोषण की जो कमी से हमारे शरीर में जो कमी होती है उसको पूरा किया जा सकता है। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कर सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। घेंघा रोग, आम बोलचाल में हम लोग इसे घेंघा रोग जो है जानते हैं कि आयोडीन की कमी से होता है, और ये बच्चों में जो है दिखते हैं, बड़े लोगों में भी दिखती हैं, लेकिन हमारे स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनमें इसकी पहचान हमें इस तरह से करनी है कि उनके गर्दन में किसी प्रकार का उभार हो, उनके गर्दन में दर्द हो सकता है, उन्हें खांसी हो, उनका जो बोलने का आवाज का जो टोन है वो बदल जाता है, शरीर जो है हमेशा भारी भारी, या उनको खाना खाने या निगलने या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ये घेंघा रोग के लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षण के आधार पे उस बच्चे को आप घेंघा रोग से ग्रसित समझ सकते हैं और उसका रिपोर्ट कर सकते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। चर्म रोग में आप लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे आपके स्कूल्स में आते हैं, उन बच्चों में बहुत ही आप लोग, कुछ लोग सर हाथ में है या हाथ में आप देखिए तो कुछ इस तरह से लालीपन आपको दिख सकता है। कुछ बच्चों के सर का आप देख रहे हैं फोटोग्राफ्स के माध्यम से कि उसमें भी कुछ कुछ दिख रहा है। हाथ में आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये बहुत ही कॉमन है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपका आंख से आप देखिए, बस उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये चर्म रोग से संबंधित समस्या है। तो देखिए इसकी पहचान के लिए आप फोटोग्राफ्स भी आपको दिया गया है, जो हम लोग बुकलेट देंगे, उस बुकलेट के माध्यम से भी आपको हेल्प मिलेगा। इसमें आप देख रहे हैं त्वचा का लाल दाने आ गए हैं, प्लस खुजली, सूखी खुजली हो रही है। बच्चे का हाथ देख रहे हैं आप किस तरह से हो गया है, सूखी त्वचा हो जाती है, उसका स्किन जो है पूरी तरह से ड्राइनेस हो जाता है, उसका आंखों के आसपास की सूजन या लालीपन आ जाता है। गोल अंडाकार परतदार चित्ती देख रहे हैं आप सर के ऊपर, जो जिस तरह का आपको दिख रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, बस आपको करना क्या है कि इसमें आप लोग बच्चों का देखिए और इसको तुरंत इसको ट्रीटमेंट के लिए आप लोग रेफर कीजिए। जो हमारे आरबीएस के डॉक्टर हैं उनके साथ संपर्क भी कर सकते हैं, हम लोग सही मार्गदर्शन करेंगे कि कहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। कान की जो बीमारी है देख रहे हैं आप, कान की बीमारी को भी बहुत आराम से आप लोग जज कर सकते हैं।
जैसे कनपट्टी या अंदरूनी भाग में सूजन हो गया, जिसमें आप देख रहे हैं कान बहना, जो आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी देख रहे हैं। फिर कान में मवाद का आना, कान जाम हो जाना, सुनने की क्षमता कम हो जाना, बच्चों को आप लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसको ध्यान नहीं दे पा रहा है या तो वो सुन नहीं पा रहा है, तो उससे भी कर सकते हैं। आप लोग बहुत बार बच्चों को डांटते भी हैं कि तुम सुन नहीं पा रहे हो क्या, तो एक बार प्लीज उन लोगों को चेक कर लीजिए कि सही में उसकी सुनने की जो क्षमता है वो प्रॉपर है कि नहीं है। कान में आवाज आना, बार बार गले में संक्रमण होना, तो इस तरह का कोई भी बच्चे अगर शिकायत करते हैं या ऊपरी सिम्टम्स जो आप देख रहे हैं कि कान बह रहा है, तो वैसे बच्चों को आप रेफर कीजिए या फिर हमारे आरबीएस के डॉक्टर से संपर्क कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बच्चों में एक हृदय रोग का बीमारी होता है। जनरली बहुत समय से बुखार अगर बच्चों में रह जाता है तो उसके बाद उनके जो है गले में जो है, गले के अंदर एक लाली या एक सफेद तरह का पत्तेदार झिल्ली टाइप का दिखता है, और ये एक बुखार के साथ जो है हमारे शरीर में आता है और वो हृदय रोग में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह के बच्चों को हम साधारणतः जो है लक्षण के आधार पर सिर्फ इसी तरह से पहचान सकते हैं कि उनको बार बार बुखार हो रहा हो, सर में दर्द हो, गले में खराश हो, या गले के अंदर अगर हम उनका मुंह खोल के देखें तो उनका जो है गले के अंदर का टॉन्सिल का जो पार्ट है वो बहुत पूरा लाल होगा या उस पर सफेद सफेद परत दिख सकती है। बच्चों के जितने भी शरीर में गांठ है, खासकर उंगली में, घुटना और केहनी है, वो सारे गांठ से उन्हें दर्द हो सकते हैं और वो कमजोर हो सकता है, उसके साथ उन्हें चक्कर और उल्टी आ सकते हैं। तो इस तरह के बच्चों को हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज या आवर्तिक हृदय रोग के बच्चों को में चयनित कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। अस्थमा, जिसे अस्थमा या दमा कहते हैं, ये कॉमन बीमारी है। ये हमें आजकल तो सब जगह दिखती है। जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है, हमारे बच्चों में सर्दी खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है, इसी तरह से स्कूली बच्चों में भी इस तरह की परेशानी रहती है, जिसे हमें उनके लक्षण के आधार पर सिर्फ ये पहचान सकते हैं बच्चे बार बार खांसी कर रहे हैं, उनको सर्दी रह रहा है, उनका नाक हमेशा बहता रहता है, गले से किसी प्रकार की घरघराहट की आवाज आती है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा, छाती में जब सांस ले रहे हैं तो छाती में किसी प्रकार का दबाव महसूस कर रहे हैं, उनको भूख कम लगना, वजन घटना, उनको बोलने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे बच्चे को हम दमा या अस्थमा से ग्रसित बच्चों की सूची में रख सकते हैं। सर नेक्स्ट सर। दांत के रोग जो आप देख रहे हैं कि दांत का रोग को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। वो बहुत ही, आप बच्चे जब बात करते हैं बोलने के क्रम में भी उनके मुंह के अंदर आप झांक के देख सकते हैं कि हाँ बच्चों को किसी तरह का कोई डेंटल कैरीज तो नहीं है। अगर बच्चे मान लीजिए दांत में दर्द की शिकायत करते हैं कि हाँ मुझे हमेशा दांत में दर्द रहता है, तो वैसे बच्चों को भी आप लोग उन लोग को रेफर कर सकते हैं। दांतों पर असामान्य धब्बे, उजला पट्टी दिखना, पीला या भूरे रंग के दांत हो जाना, दांतों का टूटना, घिसा हुआ दिखना, दांतों में अस्थिरता होना। अगर इन बच्चों को समय पे अगर ट्रीटमेंट अगर नहीं करते हैं तो, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये डेंटल कैरीज बचपन में होता है, अगर उसको सही समय पे अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसके जो दूध वाले जो दांत हैं वो टूटने के बाद भी जो दांत आएंगे उसमें भी कैविटीज हो सकती है। तो इसलिए समय पे इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है और उनको समय पे ट्रीटमेंट के लिए आपको रेफर करना बहुत जरूरी है। लाल रंग के मसूड़े या रक्त साफ होना, दांत में खोदर करके गड्ढा हो जाता है, इस तरह का आप लोग देखिए और वैसे बच्चों को आप लोग ट्रीटमेंट के लिए रेफर कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बच्चों में कुष्ठ रोग भी आप बहुत ही कॉमन है। जैसे बच्चों में देखिए, आप लोग फोटो के माध्यम से आप लोग को दिखाया गया है कि एक बच्ची के देखिए गाल में किस तरह से सफेद रंग के धब्बे हो गए हैं। बच्चे का पैर को आप देखिए, फिर बच्चे का एक चेहरा है नीचे में उसको देखिए, बच्चे का एक पीठ में आपको किस तरह का धब्बा दिख रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन, मतलब इसमें कोई भी मेडिकल साइंस नहीं है यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चों को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो आपको खाली क्या करना है कि आपको बच्चों को मान लीजिए कहीं पे आप इस तरह का धब्बा चेहरे पे दिख रहा है, तो चेहरे पे दिख रहा है तो उसको एक बार पूछिए कि ये धब्बा कहीं और भी है क्या। फिर उस बच्चे को, अगर बच्ची मान लीजिए फीमेल बच्ची है तो उसको आप एक फीमेल टीचर के द्वारा उसको थोड़ा सा एक बार दिखवा सकते हैं कि हाँ कहाँ पे उसका है, फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप रेफर कर सकते हैं। जैसे इसमें बच्चों को कुछ रोग की पहचान के लिए कुछ दिया हुआ है इसमें सिम्टम्स की, छाती पर बाद अजीब से रंग का घाव का निशान होना, त्वचा में हल्के रंग के धब्बे होना, त्वचा शून्य हो जाना, जहां पे जो ये कुष्ठ रोग होगा वहां पे त्वचा का सेंसेशन जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, त्वचा की खुश्की कम हो जाती है, अकड़न या मोटी त्वचा हो जाती है, पैर पे तलवे पर ऐसा घाव जिसमें दर्द ना हो,
तो वहां पे कहीं ना कहीं वो स्किन कहीं डेड हो जाती है। तो उसकी पहचान आप वहां पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसको कोई भी चीज फीलिंग्स नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको रेफर कीजिए वहां पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टीबी रोग जो है ये भी बहुत कॉमन है। जो हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, पहले हम लोग जो इसमें भी हम लोग जो युवा मैत्री केंद्र है वहां पे हमारी काउंसलर के द्वारा भी इस तरह की टीबी का स्क्रीनिंग किया जाता है। तो वहां पे देखिए इसका भी बहुत साधारण सा ये है कि कैसे उसको हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो 2 सप्ताह से अगर अधिक समय तक खांसी रहती है या बलगम का शिकायत कोई बच्चा करता है, या फिर अगर शिकायत नहीं भी करता है, आपके पास आपको खुद फील होता है कि 2 सप्ताह से रेगुलर ये खांस रहा है बच्चा और ये उसका तो ठीक ही नहीं हो रहा, तो वैसे बच्चों को आप टीबी स्क्रीनिंग के लिए भेज सकते हैं। वो तेज बुखार उसको हमेशा रहता है, वजन उसका कम हो रहा है, सुस्त रहता है हमेशा, गर्दन में गांठ का होना, भूख ना लगना, छाती में निमोनिया के लक्षण पाए जाना, तो इस तरह के जो भी लक्षण आपको दिखते हैं तो वैसे बच्चों को टीबी की आशंका हो सकती है। तो उसको समय पे ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को वहां पे रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मिर्गी गांव घर में चाहे स्कूल में हम लोग कॉमनली ऐसे बच्चे हमें मिल जाते हैं, ऐसे कोई मरीज हमें दिख जाते हैं जिन्हें मिर्गी की शिकायत रहती है। मिर्गी आने पे क्या होता है बच्चे में जो जब दौरा आता है तो उसे हम लोग मिर्गी कहते हैं, जिसके बाद उनका शरीर में जो है ऐंठन आता है और वो बहुत शरीर पूरा टाइट हो जाता है, वो बेहोश हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा कंडीशन होता है कि जब वो बेहोश होते हैं तो उनके दांत के अंदर जीभ फंस जाता है तो जीभ भी कट जाती है। तो ऐसे बच्चों को उनके लक्षण पे हम लोग पहचान सकते हैं कि बच्चे को दौरा आ रहा है, शरीर में ऐंठन आ रही है, बच्चा बेहोश है, उनका जीभ कट गया है, या देर तक किसी चीज को कॉन्स्टेंटली घूर घूर के देखते रहते हैं। बच्चे के शरीर में जो है जब ऐंठन हो जाता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने से उनका शरीर नीला हो सकता है, आवाज के साथ वो जोर से सांस ले सकते हैं, उन्हें बुखार हो सकता है, वो बेहोश भी हो सकते हैं। तो इस लक्षण के आधार पे हमें पहचान सकते हैं कि इस बच्चे को मिर्गी की बीमारी है। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। पोषण तत्व की कमी से जो हमारे बच्चों में बीमारियां होती है, अब उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं सर। आगे सर। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है, हमें रतौंधी हो सकती है, रतौंधी होने से फिर हमें दिखना बंद हो सकता है। तो इसके लक्षण हम कैसे पहचान सकते हैं? हमारी जो आंखें होती है, आंखें जो हमारी सूखी हो सकती है, आंख के जो हमारा आंख का परत है वो हमेशा गीला गीला भीगा हुआ दिखता है, लेकिन अगर रतौंधी हो जाती है तो आंखें सूखी हो जाती है। जो हमारा शरीर का त्वचा है, शरीर का जो स्किन है वो भी हमारा सूखा हो सकता है और उसमें खुजली भी हो सकती है। बच्चे का जो शारीरिक ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है। बच्चे की छाती में और गले में इन्फेक्शन हो सकते हैं, किसी प्रकार की घाव होने पे घाव जल्दी भरता नहीं है, और आंख पे अगर किसी प्रकार का जो है सफेद धब्बा दिखने लगता है तो धीरे धीरे रतौंधी का रूप ले लेती है। नेक्स्ट सर। विटामिन ए का जो स्रोत है, जहां से हम खान पान में सुधार करके विटामिन ए के बीमारी से अपने बच्चों को और स्कूली बच्चों को बचा सकते हैं या उनको बता सकते हैं, तो वो साधारण है कि जो हमें मौसमी फल है, मौसमी सब्जी हो, हरी पत्तीदार सब्जी हो, दाल हो, उनके खाने से हमें विटामिन ए का स्रोत मिल जाएगा। नेक्स्ट सर। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से जो है हमारे बच्चों में असमय दांत जो झड़ जाते हैं या दांत काले होके खुद ब खुद टूट जाते हैं, वो विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन डी की कमी होने से हमारे बच्चों के जो शरीर के गांठ है, वो गांठों में दर्द हो सकता है, उनका हड्डी जो है वो चपटा या चौड़ा हो सकता है, उनका जो है वजन कम हो सकता है या बढ़ भी सकता है, वो हमेशा थका थका सा महसूस कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी से हमारे बच्चे जो है जनरली चिड़चिड़ा व्यवहार करते हैं और उनका बाल भी झड़ सकता है। तो ऐसे बच्चे को इन लक्षण के आधार पर विटामिन डी की कैटेगरी में हम लोग चिन्हित करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। विटामिन डी का जो मुख्य सोर्स है वो हमारे सुबह का धूप है। सुबह के धूप से ही हमें विटामिन का सारा स्रोत मिल जाता है। इसके बाद हमें कुछ खान पान में जो है वही हरी पत्तीदार सब्जी है, दाल है, नींबू है, इस खाने से हमें जो विटामिन डी के स्रोत मिल जाएंगे, जिससे हमारे बच्चे का इलाज भी संभव हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। दृष्टिदोष में आप लोग देख रहे हैं बच्चों में बार बार आंख का रगड़ना। मान लीजिए बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ठीक से ब्लैक बोर्ड की तरफ अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, और फिर आंख में अगर लालीपन आप देख रहे हैं, बार बार आंखें बंद करके उसको
देख रहे हो, सर दर्द की शिकायत अगर कर रहे हैं, आंख में पानी आ रहा है, तो आंखें तिरछा होना उसका, या धुंधली दृष्टि होना, इस तरह से कुछ कुछ लक्षण है जिसमें फोटोग्राफ में भी आपको दिखाया जा रहा है। तो वैसे उस तरह के कोई बच्चे में आप लोग इस तरह का सिम्टम्स देखते हैं, या फिर इस तरह का कोई बच्चा आप लोग के पास कंप्लेन करता है, तो वैसे बच्चों को भी आप लोग को ट्रीटमेंट के लिए वहां से रेफर करना है। नेक्स्ट स्लाइड। श्रवण दोष में देखिए, सुनने की जो समस्या है ये बहुत कॉमन है। बच्चों में ये समझ नहीं आता है कि उनके साथ ये डिफेक्ट बचपन के साथ ही है। मान लीजिए बच्चों को कुछ भी समझा रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहा है, जोर जोर से उनसे बातें करनी पड़ रही है, उनको सुनने में समस्या हो रही है, तो उनको या गलत शब्द का उच्चारण, क्योंकि जब आपकी बात सुन नहीं रहे हैं तो वो सही से रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। तो वैसे बच्चों को भी आप लोग को देखना है, क्योंकि इन बच्चों को जो भी अगर समय पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं तो इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है और उस वैसे वैसे ट्रीटमेंट की संभावनाएं थोड़ा कम होने लगती है, तो इसलिए समय पर रेफर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर्स की, क्योंकि बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन आपकी होती है। सबसे पहले देखिए, जो भी हमारे कम्युनिटी में जो बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं कम्युनिटी के जो बच्चों के, वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उतने जानकार नहीं होते हैं कि इस तरह का उस चीज को वो आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि उनको, क्योंकि ये भविष्य है हमारे देश के, इसलिए इन पे बहुत ज्यादा फोकस करके इनको ध्यान देना हमें बहुत जरूरी है। अगर समय पे हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो उनको परमानेंट डिसेबिलिटी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो प्लीज आप लोग इसको समय पर रेफर कीजिए वैसे बच्चों को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पोषक तत्वों की कमी से जो बच्चों में शारीरिक विकास नहीं हो पाती है, तब वो मानसिक रोग या दिव्यांगता का रूप लेती है। इसमें क्या हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसा कि हम पिछले 2-3 स्लाइड में देखे कि अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है और उसकी पहचान हम समय से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चे जब धीरे धीरे वो जो है उनका नहीं दिखना अंधापन रोग में चला जाएगा और वो परमानेंटली उनका जो है दिखाई देना बंद हो जाएगा। या बच्चे के कान में इन्फेक्शन है और कान दर्द हो रहा है, कान की परेशानी है, कान बह रहा है और उसकी पहचान हम समय से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किए हैं, उसका इलाज नहीं समय पे हो पाया, धीरे धीरे वो बच्चा जो बहरा हो सकता है और वो फिर जो है दिव्यांगता की सूची में चली जाएगी। तो ऐसे बच्चों को हमें अगर समय पे इलाज नहीं करवाते हैं तो वो जो है बच्चे दिव्यांगता में आ जाते हैं, जिसके वजह से उनका हाथ पैर टेढ़ा हो सकता है। ऐसे बच्चे जिनकी सोचने समझने की शक्ति साधारण बच्चों से कम हो, उनके पढ़ने लिखने की क्षमता कम होती है या मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है, तो ऐसे बच्चे को वो लोग दिव्यांग या मेंटल डिसेबल्ड बच्चे में की सूची में रख सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। ये है ध्यान के अभाव में ध्यान, बच्चे क्लास में बच्चे जब पढ़ते हैं या कहीं खेलते हैं, किसी प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन, उनका ध्यान जो अगर केंद्रित नहीं हो पाता है, तो इसी बच्चे को हम लोग जनरली बोलते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, कि बच्चे जो है किसी भी चीज में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, जल्दी किसी चीज को भूल जा रहे हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बात बात पे झगड़ा कर रहे हैं, किसी चीज को करने के लिए उनका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। जैसे अगर एक साथ 10 बच्चे खेल रहे हैं तो उनको इंतजार नहीं कर पाते कि हमारी बारी आएगी तब हम खेलेंगे, वो चाहते हैं कि पहले हम ही खेल लें, बार बार पे उनको गुस्सा आना, आवेग आना। इस तरह के बच्चे जो है उनको जो है ध्यान केंद्रित नहीं करने की बीमारी होती है, तो ऐसे बच्चों भी जो है हमारे मानसिक बीमार बच्चों की सूची में आते हैं। इस तरह से हम उन्हें पहचान सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। उसी से मिलता जुलता एक और हमारा बीमारी है जो बच्चों में होती है कॉमनली, जिसे ऑटिज्म या स्वाधीनता बोलते हैं। ऐसे बच्चों का जब मानसिक विकास सही से नहीं होता, उनका ब्रेन सही से डेवलप नहीं होता है, तो ये बच्चे जो है अपने समुदाय में, अपने ग्रुप के बच्चों में पार्टिसिपेशन नहीं करते, उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते। किसी चीज को, किसी टॉय, उनका खिलौना हो, चाहे उनके कुछ बुक्स हो, कुछ भी चीज हो, वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, दूसरे को नहीं करने दे, अकेले खेलना, सबसे झगड़ा करना, इस तरह की एक्टिविटी रहती है। तो ऐसे बच्चे जो है ऑटिज्म बीमारी की शिकायत में हो रहती है। तो ऐसे बच्चे को इस लक्षण पर पहचान कर उन्हें रिपोर्ट करेंगे तो उन बच्चों का इलाज जो है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में जो है जिला स्तर पे किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये एक अच्छा भैया, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो हमारे बच्चों में जो भी समस्याएं आ रही हैं
उन समस्याओं को समय पे अगर हम लोग समाधान करते हैं तो इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत, जैसे प्रत्येक स्कूल में हमारे बच्चे SRGs, DRGs, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया है। तो जो टीचर्स हैं उनको हम लोग 6 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण के पश्चात साप्ताहिक एक सेशन उनको लिया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगर किसी भी बच्चों को 10 से 19 साल के कोई भी बच्चे हैं, उन बच्चों में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारा एक युवा मैत्री केंद्र फंक्शनल है। उस युवा के मैत्री केंद्र में आप बच्चों को रेफर कर सकते हैं, 10 से 19 साल तक के बच्चों को। तो जो भी काउंसलिंग सर्विसेज हैं या फिर उनके लिए ट्रीटमेंट सर्विसेज हैं, वहां पे भी आप लोग दिया जा सकता है। लेकिन जैसे कुछ, एक तो RBS की टीम आपका हेल्प करेगा, दूसरा हमारा जो युवा मैत्री केंद्र जो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध है, वहां पे भी आप बच्चों को रेफर कर सकते हैं। अंतिम में बस यही हमें कहना है कि जिस तरह से आप प्रतिदिन बच्चों के स्कूल में उनको शिक्षा देकर, उन्हें खेलकूद करा के, कहीं पे किसी भी प्रतियोगिता में भाग लगाकर उनका मानसिक विकास करवाते हैं, उसी तरह से हम लोग दोनों विभाग मिलके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आगे काम करेंगे, ताकि शिक्षा के साथ साथ उनका स्वास्थ्य बेहतर हो तो बच्चे का भविष्य भी और ज्यादा बेहतर हो। और साथ ही आप लोगों से ये भी अनुरोध रहेगा कि स्कूल के साथ साथ आपके आसपास के पड़ोस में, अपने घरों में अगर ऐसे कोई बच्चे दिखते हैं, उस बच्चों को भी आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पे लाएं और उनका इलाज करवाएं। हमें आप सबों से इसी सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।